Assalamu alaikum, students. This is our second class of chemistry for ninth and pre-ninth, and we are doing chapter number one. We have already completed first half, chapter one, and now we will be doing the rest of the chapter. Hopefully, you have read and understood whatever we have discussed in the first part. Now, let's start with the next part of the chapter one, chemistry. Okay, students. Previously, we have uh, completed our natural occurrences by weight percentage of some elements, in which we studied about earth crust and then oceans and then atmosphere. And then we have certain questions. Um, Previously, we have certain questions as well, which we are supposed to, you are supposed to try at your homes. And today we will discuss them, and you will then write them down in your copies and send them as a homework to me online on WhatsApp group. So let's start with question number one. In which branch of chemistry behaviors of gases and liquid is studied? So the answer is physical chemistry. Okay, as you can see from the previous paragraph, it is the physical chemistry that deals with the behavior of gases and liquids. Okay, the next question is define the biochemistry. So if you just go behind and look at biochemistry, it says it's a branch of chemistry. You can see it here. It's a branch of chemistry. Uh, So if you want to see the diagram, it's the branch of chemistry in which we study the structure. So we of course are doing the structure of it. And if you see the composition and the chemical reactions of substances found in the living organisms. So this is the definition of biochemistry, that it is, number one, you have to remember that it is the branch of chemistry. That branch, and we study the structure, we study the composition, we study the chemical reactions of the substances which are found in living we are found in the living organisms. So, okay, so if we just go back to our next question and see what does it say. So, next question is which branch of chemistry deals with the preparation of paints and papers? So, if you go back and if you see this line of industrial chemistry, that industrial chemistry deals with the preparation of paints and papers and so many other things which include fertilizers, soaps, textiles. The answer is industrial chemistry. Hope you people have read this and you know this. The next question is in which branch of chemistry the metabolic process of carbohydrate and proteins are studied? It's biochemistry. Which branch of chemistry deal with atomic energy and its uses in daily lives? You know, the field of Madame Curie, that is the nuclear chemistry. So it deals with the atomic energy, and it deals and what are the uses in daily life. As you know, in medical sciences it is used for radiotherapy. In energy sector it is used for nuclear energy. Okay, so which branch of chemistry deals with the structure and the properties of naturally occurring molecules? The answer of this is probably the environmental chemistry. So we are done with these questions. Now we will move on to our today's topic, and today's topic is starting with the elements. So students, just read with me all these things. Elements are represented by symbols which are abbreviation for the name of elements. Okay, for example, सोडियम की हम बात करते हैं, सोडियम एक एलिमेंट है
और उसका जो सिंबल है वो Na है, तो एक एब्रीविएशन है। हम Na लिख के तो वी विल से इट्स सोडियम। इन द सेम वे अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसका जो सिंबल है वो H है। अगर नाइट्रोजन है तो उसका सिंबल N है। अगर कार्बन है तो उसका सिंबल हमारे पास C है। The unique property of an element is called valency. So valency की बात करते हैं कि एक यूनिक प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर एलिमेंट के लिए खास होती है। इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। वैलेंसी का मतलब यही है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितना कंबाइन कर सकता है, कितनी विलिंगनेस है उस एलिमेंट में दूसरी एलिमेंट से कंबाइन करने की। उसकी जो विलिंगनेस है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसके अंदर जो पावर है टू कंबाइन विद द अदर एलिमेंट, वो क्या चीज़ गवर्न करती है? वो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी गवर्न करती है जिसको हम वैलेंसी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स की। वैलेंसी is the number of hydrogen atoms which combine with one atom of that element, or the number of bonds formed by one atom of that element। बड़ी सादा सी जुबान में अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड है जैसे HCl, जैसे H2O, NH3 या CH4, नीचे दी हुई डायग्राम्स में भी आपको ये नज़र आएगा। तो मैं आपको ये समझाता हूँ। ये देखिए आप, ये जो हैं चार, अगर आप नोट करें, ये आप देखिए कि हमारे पास ये चार उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड्स की एग्जांपल दी है। अगर आप इसको गौर करें तो फर्स्ट वन इज HCl, the second one is H2O, the third one is NH3, and the fourth one is CH4। सबसे पहले आप इस बॉन्ड को देखिए, HCl। H एक एलिमेंट है जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं और इसकी जो सिंबल है वो H है। दूसरा एलिमेंट क्लोरीन, क्लोरीन का एक एलिमेंट सिंबल इज डोनेटेड बाय Cl। H और Cl आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, और उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, और इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। And this shows that it is a simple covalent bond, and number of hydrogen atom in this covalent bond is 1, and it is combined with one atom of chlorine element with a single bond. So the number of bond formed by between hydrogen and chlorine is 1, and the valency of hydrogen in this case is 1. Now turn to the second example. You can see we have an H2O water. In the center we have an oxygen element, one atom, and on its both sides we have hydrogen atoms. They are making single bonds between oxygen and hydrogen, and we can see there are two covalent bonds. Now come to the third example.
we can see here that okay, so come to previous example. Now we know that there's two bonds of oxygen with hydrogen, and the number of hydrogen in this case are two. So we have a valency of two for oxygen. In this case, nitrogen is forming three bonds with three hydrogen atoms. So the number of hydrogen atoms and the number of bonds in this case is three. So the valency for nitrogen will be three. Now come to the next example. This is CH4, which is called methane, and we can see that carbon is forming four hydrogen bonds, covalent bonds with four atoms of hydrogen to form CH4. So if we count the number of hydrogen atoms in this compound, it is 1, 2, 3, 4. And if we count the bonds, these are four bonds. So the valency of carbon in this compound is 4. So हम definition को दोबारा पढ़ते हैं. In simple covalent compound, these are simple covalent compounds, valency is the valency is the number of hydrogen atoms. So in this number of hydrogen atom is 1, so valency is 1. In this the number of hydrogen atom is 2, so the valency is 2. In this ammonia the number of hydrogen atoms are 3, the valency is 3. And in this case the valency is 4. So the valency is the number of hydrogen atom which combine with one atom of the element. So one definition is this, which is defining the valency, the number of hydrogen atoms. The other definition is or the number of bonds formed by one atom of that element. So you can count number of hydrogen atoms or you can count the number of bonds, and that gives you the valency of that central element. So the valency of chlorine in this case is 1, the valency of oxygen in this case is 2, the valency of nitrogen in this case is 3, and the valency of carbon in this case is 4. Okay, students. Now let's come to the next paragraph. In simple ionic bonds. Okay, so initially we talked about the simple covalent bonds. Okay, so initially we were talking about the simple covalent bonds, and covalent bonds are those compounds or those bonds that are formed by sharing of electrons. There is no loss or gain of electron. There is only sharing of electron. Whereas in simple ionic compound, there is a loss and gain of electron and there is no sharing of electrons. So in this case, the valency is the number of electrons gained or number of electrons lost by an atom of an element to complete its octet. So concentrate on these lines. There are two types of elements. There are two types of compound. Number one is simple covalent compound. Examples are given here of simple covalent compound. The other is the ionic compound in which there is loss or gain of electron, and the atom does it to complete its outer valence shell, which is called octet. Octet means 8. The valence shells should have 8 electrons to be stable. Now let's do the next line. Elements having less than 4 electrons in their valence shell prefer to lose the electrons to complete their octet. Very rightly said that, you see, in simple ionic compound, atom will try to have either 2 electron in their shell or 8 electron in their outer shell. So if they are less than 4 electrons, they will try to lose those electrons to get rid of the outer shell and have the shell of 8 electrons in its stable form. And if there are more electrons in the outer shell,
they will try to gain electron to complete their outer 8 electron. Let's see example. For example, we have atoms of sodium, magnesium, aluminium, and they have one sodium have one electron in its outer shell because it is in group 1. Magnesium had two electrons in its outer shell because it is in group 2, and aluminum has three electrons in their valence shell. So all of these, according to this law, will have less than four electrons in their outer shell. So whenever they make an ionic compound, they will be losing their electrons. Sodium will lose one electron, magnesium will lose two electron, and aluminum will lose three electron, and they will have the valency of +1, 2, +2, or +3 in their shells. They lose their electrons to have the valency of 1, 2, 3 respectively. On the other hand, elements which have 5 or more than 5 electrons in their valence shell, they will gain electrons to complete their octet shell of 8 electrons. For example, if you look at nitrogen have 5 electrons in their outer shell. Oxygen is in group 6, it has 6 cells in the outer shell. Chlorine atom is at group 7 and it has 7 electrons in their valence shell. Nitrogen has 5, oxygen has 6, and chlorine has 7 electrons in their valence shells respectively. So to make it 8, nitrogen have 5, so if it just takes 3 electrons, it will gain 3 electrons to make it 8. So it is not easier for nitrogen to lose 5 electrons, it is easier to gain 3 electrons, so it gains 3 electrons. In the same way, if you look at oxygen, it just has to gain 2 electrons because it already have 6 electrons in their outer shell. So oxygen is gaining the 2 electrons to make 8 electrons in their outer shell. And if you look at chlorine, it already have the 7 electrons in its shell. So it only needs 1 electron gain. So they all gaining, so they have oxygen have to gain 1 electron, nitrogen have to gain 3 electrons, so it shows the valency of 3. Oxygen has to gain 2 electrons, so it shows the valency of 2, and chlorine gains 1 electron, so it shows the valency of 1. So this is what the simple ionic compound behave like. Now, what is radical? We have to do the definition of radical as well. So radical क्या है? इसकी definition ये लिखी हुई है. This is the definition of radical. Radical is a group of atom. You have to learn this. It's more than one atom. It's a group of atom that have some charge. For example, if I tell you, uh, if you let me write it here, okay. For example, if we say nitrogen, for example, if I have a nitrogen and then I have H and I have 4 of it. So 4H. So if you see, this is a radical. This has nitrogen, 1 nitrogen, and it has 4 hydrogen with it. So it will be having a charge. Okay, so it's having a charge of +1. So you see, this is a radical. It's a group of atoms that have some charge. So valencies of, this is the ammonium anion. It is called ammonium anion. It's a radical, okay? So valencies of some common elements and radicals are shown in the next chapter. Okay, so now मैं quickly इसको revise कर दूं. किसी भी एटम को हम एलिमेंट कह सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन जब वो बॉन्डिंग करता है तो ये डिपेंड करता है कि वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है या वो आयोनिक बॉन्डिंग कर रहा है. अगर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो वो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, और उसकी जो वैलेंसी है वो डिटरमिन करती है दो चीज़ों पे, या तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे
या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अगर वो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल HCl में वैलेंसी 1, वाटर में 2, अमोनिया में 3 और मीथेन में 4। और फिर होते हैं सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स जो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं। अगर उनके आउटर शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो तो इट इज easier फॉर देम टू लूज इलेक्ट्रॉन देन टू गेन, to have a stable form of 8 electron in the outer shell। सोडियम के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे सोडियम के आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे और फिर 8 बनाए, या वो एक को लूज कर दे और नीचे वाले शेल में 8 पहले से मौजूद हो। तो इट इज इजियर फॉर सोडियम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी लेंसी 1 हो गई। मैग्नीशियम के 2 हैं, वो 2 लूज करता है। एल्यूमिनियम के 3 हैं, वो 3 लूज करता है। लेकिन हम अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन की बात करें तो वो गेन करते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब रेडिकल की हमने बात कर ली कि ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें चार्ज होता है। तो हम एग्जांपल अमोनियम एनायन के लिए कि उसमें नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उसमें +1 चार्ज है। तो हम नीचे चलते हैं। हमने इसको सेव कर लिया। ओके, सो नाउ वी जस्ट मूव डाउन एंड हम देखते हैं कि हम okay, we just don't want to save it, rather we will see and redo undo, so we are undoing it now. So if I just okay, so undo. so, so I just cleared it और हम अब जाते हैं नीचे। तो अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ओके, सो अब ये जो आपके सामने चार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आप देखें, सोडियम ग्रुप 1 में है, इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो ये लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1। पोटेशियम को देखिए, पोटेशियम के आउटर शेल में अगेन 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 1 में है तो इसकी वैलेंसी है 1। सिल्वर के आउटर शेल में अगेन 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी है 1। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है आयोनिक बॉन्ड्स बनाने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 2 है। इन द सेम वे हम आगे जाते हैं तो कॉपर जैसे आता है, तो कॉपर की 2 वैलेंसीज है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसीज होती हैं। क्या वजह है? क्योंकि उनकी वेरिएबल वैलेंसी, उनकी कैपेसिटी ऐसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके तब भी कंपाउंड बना सकते हैं, वो 2 लूज करके तब भी कंपाउंड बना सकते हैं, और दोनों कंपाउंड जो वो हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, उसने आपने दिया, मैं बताता हूँ मैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें कि फेरस सल्फेट FeSO4, इसमें जो वैलेंसी ऑफ आयरन है वो 2 है। अगर आप इसमें आयरन को देखें, आयरन 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट कर रहा है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं, एनोटेट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि जो आयरन है, इसकी जो है 2 वैलेंसीज हैं, 2 भी है और 3 भी है। तो FeSO4 में इसकी SO4 जो है ना, अब फॉर एग्जाम्पल SO4 जैसे है, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। SO4 इज ए किन किन एलिमेंट से SO4 बना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम यहाँ पे इसे करेंगे कि अगर आप यहाँ पे देखें कि SO4, इसका मतलब ये होता है, अगर आप इसको देखें, गौर से देखें कि S है और S के साथ हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, हमारे पास इफ यू सी वी हैव 4 ऑक्सीजन विद X, ठीक है। तो S के साथ हमारे 4 ऑक्सीजन हैं और ये इनके साथ एक बॉन्डिंग कर रहे हैं, और बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। लेकिन अगर आपको एक हम चीज़ बताएं तो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि इस पे जो चार्ज है वो -2 का है। चार्ज क्या है? अगर चार्ज की बात करते हैं, इस पूरे रेडिकल में जो चार्ज है वो -2 है। दिस इज ए रेडिकल। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि SO4 इज ए रेडिकल। अब ये रेडिकल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, विद ए चार्ज ऑफ -2। तो अगर आप इस चीज को देखें
ऐसो इस चीज़ पे गौर करें कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट let me do it. Okay, it's fine. I just want to annotate it, close it. Okay, if you just let me do it. Um, so SO4 is a radical, is a radical, and it has a charge of -2. So iron -2 means that it needs two electrons to get stable, and iron when have a valency of +2. If iron have a valency of +2, it means that it can lose its two electron easily. So this is what iron is all about. If it's +2, it will lose two electrons, and sulfate radical will accept two electrons. So they will form a compound FeSO4, and it is called ferrous sulfate. And you see the valency of iron in this case is 2. Then there is another compound which is called ferric sulfate. Now it has a changed formula. If you can see, it is Fe2SO4S3. It's a changed formula. What happened here? The valency of iron is not +2 here, it's 3. Iron wants to lose 3 electrons, and sulfate again wants only 2 electrons, whereas iron here can give 3 electrons. So where will that extra electron go? So what happens is that 2 sulfate ion comes here. When 2 comes here, it means that now they have 6 electrons to give to iron. And if 2 iron comes in 3 valency, they will need 6 electrons. So in this format, where 2 iron with the valency of 3 combines with 3 radical sulfates and form Fe2SO4. It is called ferric sulfate. So you need to remember, few elements have variable valencies, more than one valencies. And for example, iron in an example, it is 2 and 3, and they make a different compound with different properties. If iron of 2 valency combined with sulfate radical, it will form iron sulfate, which is called ferrous sulfate. If it combined with valency 3 with sulfate radical, it will form ferric sulfate, which is Fe2SO43. So generally the name for the element, for example, ferrum, is modified to end in S for the lower. For example, ferrous is for ferrous sulfate, and ferric is for the ferric sulfate. So we're done with the element, students. Now let us go and do the let us do about go let us see the compounds. What are compounds? Compounds is a substance which is made up of two or more elements. Compounds की definition क्या है? एक या उससे ज़्यादा elements combine करके chemically fixed ratio में by mass. तो फॉर एग्जाम्पल एज रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, न्यू सब्सटेंसेस को क्रिएट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है. इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्या दे रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो उसका फार्मूला सबको पता है. अगर आप फार्मूला देखें तो वो सी और O2, CO2 जो है विद शेयरिंग वो बनाते हैं. इसकी रेशो क्या है? 1:2. तो कहते हैं कि जी CO2 जब बनता है व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशो 12:32 और 3/8 mass. अच्छा, दिस रेशो इज 1:, not 1:2. It is 12/32 or 3/8 by mass, because in compound we are taking it as a mass. If you see the mass of carbon, it is 12, and if you see the mass of oxygen, it is 16 plus 16, because there are two oxygen, so you just add 16 plus 16 and you have 32. Okay,
So you have a total figure of 32. So if you can see that the ratio is 12 ratio 32 or 3 by 8. Similarly water की बात करते हैं तो उसमें भी H2O, दो हाइड्रोजन है और वन ऑक्सीजन है। तो अगर दो हाइड्रोजन हो तो उनका मास आप देखो निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन फाइंड द रेशियो। सो कंपाउंड क्या है? इट्स सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ओके, आगे चलते हैं। इसको क्लोज करते हैं, आगे चलते हैं। कंपाउंड्स के बाद, अच्छा, कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयोनिक और कोवलेंट। हम बात कर चुके हैं कि आयोनिक वो कंपाउंड्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोवलेंट वो कंपाउंड्स हैं, आयनिक वो हैं जिसमें गेन और लॉस होता है, कोवलेंट वो कंपाउंड है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। आयनिक इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, दे फॉर्म अ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ये बड़ी प्यारी बात है। जैसे आयोनिक कंपाउंड में NaCl जो है, यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, NaCl, आई जस्ट शो यू, ये आप देखें कि जो NaCl है ये हमारा सॉल्ट है और ये लैटिस की फॉर्म है। ये जो आपके लिए वर्ड यूज किया, थ्री डायमेंशनल लैटिस, आप समझ लें कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें NaCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एडजस्ट होते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एडजस्ट होते हैं और NaCl लैटिस बनाते हैं, और सॉल्ट के जो NaCl लैटिस बनाते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो ईच आयन इज सराउंडेड बाय एन ऑपोजिट चार्ज आयन, ठीक है, जो वो एक दूसरे को ट्रैक करते हैं, वो फार्मूला यूनिट बनाते हैं। एग्जांपल दी गई है NaCl, सो ये बताया कि पोटेशियम ब्रोमाइड कॉपर सल्फेट, जबकि कोवलेंट कंपाउंड तो मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाते हैं, H2, HCl, H2SO4 और मीथेन। तो अगर हम बात करें वाटर की, H2O इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड, सोडियम क्लोराइड इट्स एन आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे आपने लिखते जाना है, हम इसको क्लियर करने लगे हैं, क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। ओके, अब मुझे आपने बताना है दिस इज H2O एंड इट इज ए, हम सबके आगे लिखते जाएंगे कि कौन सा जो है वो कोवलेंट है और कौन सा जो है वो कोवलेंट नहीं है, ये आपने बताना है, क्योंकि आप ये बताएंगे तो फिर ही हम आगे चल सकते, ठीक है। H2O की बात अगर करें तो H2O जो है ये कोवलेंट है, हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, ठीक है। और अगर हम इसमें इसकी बात करें कि व्हाट अबाउट दिस NaCl क्या है? इट इज आयोनिक, हमें मालूम है कि ये आयोनिक है। अच्छा, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये क्या है? इट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो हमें मालूम है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कोवेलेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मालूम है कि ये एक बेस है सोडियम, और ये हमें पता है कि इट्स एन आयोनिक ग्रुप। तो ये आप सबने सोडियम हाइड्रोक्साइड से याद है। सोडियम कार्बोनेट भी हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है। आयंस की आयोनिक क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस से बनते हैं, सो आयोनिक बॉन्ड्स है। कैल्शियम ऑक्साइड विच इज कॉल्ड क्विक लाइम, हमारे ये जो सीमेंट बनता है, चौक बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट चौक को कहते हैं, तो ये भी आयोनिक, ये सारे आयोनिक बॉन्ड आप नोट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब, ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दिस इज, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड अमोनिया इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सारे कोवेलेंट। सो यू सी, अगर आप इस पे गौर करें कि वाटर हमारा, तो ये हमारे सम कॉमन कंपाउंड विद फार्मूलाज हैं। मैंने आपको बताया है कि कौन सा कोवेलेंट है, कौन सा आयोनिक है, ये सारे आपने देखने होंगे। सो लेट्स सी, अब हमने इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला उन्हीं लोगों के दरमियान बनता है जो कोवेलेंट बना रहे होते हैं, फार्मूला यूनिट जो कि आयोनिक बॉन्ड। तो हमें पता लग गया कि फार्मूला यूनिट जो कि आयोनिक बॉन्ड को शो करता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स को शो करता है। अब हम ये रिमेंबर वाली जो पॉलिसी है इस पर अमल करते हैं कि ये हम सेव कर लेते हैं, शो इन फोल्डर। ओके, नॉट स्क्रीन सेव को बंद कर देते हैं, ठीक है।
सो और हम इसको बंद करते हैं तो हम आगे चलते हैं। रिमेंबर ऑलवेज यूज द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोडियम को Na से शो करना है और N कैपिटल होना चाहिए, मैग्नीशियम को Mg से शो करना है। तो जो पीरियोडिक टेबल में सिंबल्स हैं उनके साथ ही एलिमेंट को शो करना है, अपनी मर्जी से नहीं बनाने। Always use chemical formula of the compound. For example, NaCl is a chemical formula of salt, हमें पता होना चाहिए। Proper abbreviation of scientific term and standard values. Okay, so हमने compounds पढ़ लिए। Our next topic is mixture. When two or more elements, ठीक है ना, एक या उससे ज़्यादा elements को जब या compounds को हम mix करते हैं physically और उसकी कोई रेशो हमें पता नहीं होती तो उसको मिक्सचर कहते हैं। और जब हम उनको मिक्स कर देते हैं तो वो अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, वो उसको रिटेन रखते हैं। फिर हम मिक्सचर को सेपरेट भी कर सकते हैं वापस अपने पेरेंट कंपाउंड की तरह। और जिस मेथड से हम वापस मिक्सचर को अपने पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट करते हैं वो डिफरेंट हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। उसमें डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन मतलब भाप बना के, फिल्ट्रेशन सॉलिड पीछे रहता है, पानी फिल्टर करके नीचे आ जाता है। वेपोरेशन अगेन आप रूम टेम्परेचर पे भी सरफेस से मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं वेपर्स में, इसमें बॉइलिंग नहीं हो रही होती, सिर्फ वेपोरेशन हो रही है। देन वी हैव क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में ये होता है कि सॉलिडिफाई करता है फ्रॉम द लिक्विड फेज। एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर्स, अगर कोई मेटल की चीज़ पड़ी है, आप मैग्नेट्स रखते हैं तो दे विल बी अट्रैक्टेड। नॉन मेटालिक चीज़ें मैग्नेटिक को अट्रैक्ट नहीं होती तो उसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, उसको हम होमोजेनस कहते हैं ना। मिक्सचर ए बी सी डी हैं, वो यूनिफॉर्म है, एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, तो उसको होमोजेनस कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम, ये सारी होमोजेनस मिक्सचर की एग्जाम्पल है। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर जैसे हैं जिसमें सॉइल, रॉक, वुड हो, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, सो एयर क्या है, ये है एक टेबल बना है, यू नो, नॉलेज के लिए दे रहा है। एयर क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन। हम एक पहले टेबल कर चुके हैं कि हमारी एयर में नाइट्रोजन 70+% में, ऑक्सीजन 21% में, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी आपको पता है कम परसेंटेज है, नोबल गैसेज आर्गॉन वगैरह और कम है, वाटर वेपर्स जो हमारे लिक्विड से कन्वर्ट होकर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर सॉइल जो है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ क्ले, सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ मिनरल सॉल्ट, वाटर। एयर हमें पता है एयर इज ए होमोजेनस मिक्सचर, गैसेज हैं सारी एक जैसी। सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ हेट्रोजेनस थिंग्स, ठीक है, उसमें सैंड, मिट्टी भी है, क्ले भी है, सॉल्ट्स भी हैं, पानी भी है, हवा भी है, ठीक है। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट्स एंड विटामिन्स। एंड ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल्स। ब्रास जो है बहुत सारी धातुओं से, बहुत सारे मेटल से बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ टेबल which is the difference between compound and mixture। आप पहले ये सारा पढ़ चुके हैं। तो compound क्या है? It is formed by the chemical combination of atoms of the elements। compound क्या चीज़ है कि वो elements के जो होते हैं ना atoms, उनके combination से बनता है। लेकिन mixture क्या है? वो आप simple उनको mix करते हैं, उनमें chemical combination नहीं है, simple mixing है, एक जार है उसमें अपनी मुख्य चीज़ें डाल दी। लेकिन जो chemical compound, जो compound है वो chemical process से mixing होता है। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक कंपाउंड है, तो कार्बन की अलग प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन की अलग हैं। लेकिन जब वो CO2 बनाते हैं, कार्बन अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ देता है, ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ देते हैं, और CO2 एक नया कंपाउंड अपनी अलग प्रॉपर्टीज के साथ मौजूद होता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके, जैसे C है, O2 है, ये लूज आइडेंटिटी है, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे CO2 है, और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज पिछले वालों से होती है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, उनके अंदर जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखते हैं। ओके, कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में मास, लेकिन मिक्सचर की फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होती। ये दबाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, ठीक है, हम कंपाउंड के कंपोनेंट को सेपरेट फिजिकल मीन से नहीं कर सकते, हमें प्रोसेसेस चाहिए। कौन कौन से? जैसे डिस्टिलेशन है, जैसे आपको पता है मुख्तलिफ मतलब चीज़ें हैं, हम उनको सेपरेट करना है, हमें रिएक्शंस करवा के सेपरेट करना पड़ेगा, हम उसको फिजिकल मीन से। लेकिन डिस्टिलेशन की मैंने बात की, वो फिजिकल मीन्स, वो मैटर के लिए, मिक्सचर के लिए। सो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो आप सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड्स में आपने सारे पीछे पढ़ लिए हैं, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनाइजेशन है, और वगैरह वगैरह आप सारे पढ़े हैं, ठीक है।
कंपाउंड्स हैव होमोजेनस कॉम्पोजिशन, कंपाउंड की जो कॉम्पोजिशन है वो होमोजेनस है, लेकिन हमें पता है कि मिक्सचर होमोजेनस भी हो सकता है, हेटेरोजेनस भी हो सकता है। कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो शार्प हैं और फिक्स्ड हैं, यानी कि अगर 100 है, वाटर का 100 है तो 100 ही है और शार्प है, ठीक है। मिक्सचर के ना शार्प है ना फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल मिल्क जैसे है वो, उसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर सकते हैं, ग्लास का बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर सकते हैं। सो अब हम ये टेस्ट करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द मिक्सचर, कैन यू आइडेंटिफाई द एलिमेंट, कैन यू आइडेंटिफाई द कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखते हैं, अच्छा ये जो एक्सरसाइज है ये आप लोगों ने होमवर्क में करनी है, हम इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक एटॉमिक नंबर और मैथ्स के साथ है, और उसमें भी रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूँ कि ये हम एक फ्रेश डे पे करें, तब तक आप अपना प्रीवियस सारा जो है ना वो कर चुके हों। तो आई थिंक वी stop today and we will resume our talk from the atomic number in atomic mass number from tomorrow, from next lecture. So please, एक तो आप लोग जो पहले हमने क्वेश्चन आंसर्स किए उनको आंसर करें अपनी कॉपीज में जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये न्यू क्वेश्चंस हैं इनको भी आप अटेम्प्ट करें, इनको हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को दोबारा सुने, अंडरस्टैंड करें। तो नेक्स्ट, टिल नेक्स्ट टाइम, inshallah, stay safe, stay home, study. uh, Allah Hafiz.